A very good morning to you all. Myself Pooja Vaishnav, your new IT teacher, and today we are going to start with the first chapter. So, your subject name is Information Technology, your subject code is 402. Okay, so first of all, we are going to discuss about the syllabus. Okay, so in the syllabus part, your information technology subject. This book is divided into the two parts. First is part A and second is part B. The part A is employability skills, and in this part you are gonna have 5 units. Unit 1, 2, 3, 4, and 5, as you can see. And today we'll start with the unit 1, that is communication skills. Okay, and this whole part A, it will be of only 10 marks. Now second is part B. In this again you're gonna have 5 units, and this part B is basically, it is totally actually totally it is based on the computer system, like how you will enter the data, how database works, how you make the digital documentation, how you can work with the spreadsheets, excel sheets, how you can make the digital presentation. So the part B is all about this only, and part A is just about the communication skills, your self management skills, your ICT skills, etc. So today we are gonna start with unit 1. Okay, before this I'm just showing you the marking scheme. Here your marking scheme is, your theory part is of 50 marks and your practical part is of again 50 marks. Okay, so our main focus is on theory part, that is of 50 marks. Okay, so out of this 50 marks, 10 marks will be from part A and other 40 marks will be from part B. Okay, now let's start with the chapter 1, communication skills. So before going to start in detail with this, okay, first of all you should understand the meaning of the communication. Okay, so आप सभी ने communication word तो obviously सुना ही होगा. Whenever I say communication, so what comes to your mind first? Communication means बात करना, किसी के साथ बात करना, किसी के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना. तो बस यही हमारी होती है डेफिनेशन, कि अगर हम किसी से कुछ बात करें या किसी से अपनी कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करें तो वही होता है कम्युनिकेशन. अब जब हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, सो ऑब्वियसली वी नीड टू पर्सन्स. वन इज़ मी एंड सेकेंड वन इज़ द वन जिसके साथ मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है. सो हमारी डेफिनेशन भी उसी तरीके से बनती है कि हमारा कम्युनिकेशन है, इट इज़ वॉट, इट इज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. कि हमें इंफॉर्मेशन शेयर करना है कितने लोगों के बीच में, बिटवीन टू, more than two could be there, so we can say between two or more individuals or within a group to reach a common understanding. हमें डेफिनेशन को रटना नहीं है, हमें डेफिनेशन को समझना है. सो कम्युनिकेशन मीन्स अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, यानी और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए मेरे सामने कोई और भी तो होना चाहिए. दैट मीन्स वी नीड 2 persons, एटलीस्ट 2 persons वी नीड. दो से अगर ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा. So, a definition is communication is the sharing of information between two or more individuals or within a group to reach a common understanding. And this communication word basically it came from Latin word communicare, and its meaning is to share. Okay, so ये आपका हो गया पूरा डेफिनेशन पार्ट. ओके स्टूडेंट, इससे पहले एक बात मैं आपको और कहना चाह रही हूँ. आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है आईटी की. उस नोटबुक में आपको ये सभी कुछ लिखना रहेगा. फर्स्ट आप अपना सिलेबस पार्ट आपको अपने नोटबुक के फ्रंट पेज पे लिखना है. पार्ट ए दिस, जैसा कि आपको टेबल दिख रही है एज इट इज़ आपको लिखना है. देन पार्ट बी, ये भी आपको एज इट इज़ लिखना है. बस सामने आप इस जगह पर ऐसे लाइन करके यहाँ पे 40 मार्क्स और लिख दीजिएगा, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि पार्ट बी इज़ ऑफ 40 मार्क्स. इसके बाद आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है मार्किंग स्कीम. देन यू विल कम टू यूनिट 1. तो जैसा जैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सारे टॉपिक्स को समझा रही हूँ, और नोट्स में आपको वही लिखना है जो आपको सामने दिख रहा है. सो आप अपनी नोटबुक के अंदर सिलेबस लिखने के बाद यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे. यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, और आपको डेफिनेशन में ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. अभी हमने कम्युनिकेशन के मीनिंग को समझा. कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल और विद इन अ ग्रुप. ओके, सो ये हमारा कम्युनिकेशन का डेफिनेशन हमने समझ लिया.
Now come to the next topic, that is importance of communication. अब importance of communication में mainly we are having 3 points here. First is inform, second is influence, and third is express feelings. ओके, सो जो भी हमने कम्युनिकेशन के अंदर डेफिनेशन में देखा था वही हमारे फर्स्ट पॉइंट है कि इन्फॉर्म. ओके, सो इन्फॉर्म मीन्स अगर मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स किसी के साथ शेयर करने हैं. ओके, जैसे कि एग्जांपल आपको गिवन है, कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल ऑफ एन एग्ज़ाम टू अ फ्रेंड. आप अपने फ्रेंड को अपने एग्ज़ाम का टाइम टेबल शेयर कर रहे हो, उसके साथ उसको बता रहे हो, यानी एक इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हो. तो 2 लोग हो आप, दैट मीन्स कम्युनिकेशन हो रहा है, इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है. तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस आ जाती है. जब आपको किसी को इन्फॉर्मेशन देना है देन यू रिक्वायर कम्युनिकेशन, दिस टर्म कम्स हियर. ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इन्फॉर्म. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस बाय, सपोज आप कभी आप किसी शॉप पे गए कुछ लेने के लिए, और आपको कोई चीज़ जो आपको बाय करनी है उसमें नेगोशिएशन करना है. लाइक आप कुछ कपड़े लेने गए हो, ओके, कि वो जो प्राइस बता रहा है आपको उसमें कम प्राइस, आपको उसकी प्राइस को रिड्यूस करवाना है, उसको नेगोशिएट करना है प्राइस को. तो अगर आप अच्छे से उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, अच्छे से बहुत स्मूथली उसके साथ बात करके उसको समझाने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि वो प्राइस को रिड्यूस कर दें. सो हियर इट कम्स द इन्फ्लुएंस. ओके, दिस वर्ड इन्फ्लुएंस यानी आप कितने अच्छे स्पीकर और कितने अच्छे से अपनी बात को कम्युनिकेट करते हो, तो वो उस पर इन्फ्लुएंस अच्छा होगा शॉपकीपर से, हो सकता है कि प्राइस को रिड्यूस करें. और यही अगर आपने बहुत रूडली बोला कि नहीं करनी पड़ेगी ऐसा कुछ, तो हो सकता है कि वो आपकी प्राइस को रिड्यूस ना करें और आपको बिना लिए ही चीज़ को जाना पड़े. ओके, सो दिस इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the communication. Next, third point is express feelings. Now, express feelings. Talking about your feelings is a healthy way to express them. For example, sharing your excitement about doing well in your exams with your parents and friends. Now, third is, first you are just giving the information. Second is you are trying to influence some other person. Third is express feelings, like if you got very good marks in your exams and you want to uh, tell this to your parents or friends, then you can express this thing by your feelings only. अगर आपको अच्छे मार्क्स आए तो आप कम्युनिकेट, अगर आप जाके अपने पेरेंट्स के सामने बहुत खुश होकर बताओगे, या आपने जाते ही आपको सपोज आज रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और आप घर पे रिजल्ट, स्कूल से रिजल्ट मिलते ही आप जब आप घर पे जाओगे और बहुत ही खुश हो, आपके फेस पे बहुत अच्छी सी बड़े से स्माइल्स है, तो उन फीलिंग्स उस चीज़ को देख के समझ में आ जाएगा दैट योर रिजल्ट इज़ वेरी गुड. अगर आपका मुंह लटका हुआ है, बहुत उदास हो, दैट मीन्स उससे आपके पेरेंट्स क्या समझेंगे कि इसका रिजल्ट तो बिगड़ गया. ओके, सो हमारा कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं कि बात करके ज़रूरी नहीं कुछ कर बात करने से हो सकता है कि हम कुछ हैंड मूवमेंट के थ्रू बताएं, हो सकते हैं अपनी फीलिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस करें, हो सकता है कि हमारे आइडियाज़ के थ्रू एक्सप्रेस करें, हो सकता है कि हम इन्फ्लुएंस के थ्रू एक्सप्रेस करें. सो कम्युनिकेट करने के भी बहुत सारे तरीके होंगे, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. यहाँ हम सिर्फ इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ हुई उसकी, इन्फॉर्मेशन को, किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन देने में, सेकंड किसी को इन्फ्लुएंस करने में, थर्ड किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में. सो आपको ये 3 पॉइंट्स बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में याद रखना है. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, नाउ वी नो कम्युनिकेशन इज अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. अभी हमने देखा why we are saying this line, it is a two-way exchange of information, because we are exchanging our information with other person also, and that person will respond back. अगर हमने कहा how are you, so respond करेगा ना कि I am good. so this is two way exchange of information. जैसे कि अगर मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ और आप उसको सुन रहे हो, और अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो, वापस से मुझसे क्वेश्चंस करते हो, कुछ बोलते हो, तो वो होगा हमारा टू वे कम्युनिकेशन. स्टिल अभी भी कम्युनिकेशन हो रहा है. वाई? बिकॉज आई एम शेयरिंग माई इन्फॉर्मेशन विद यू एंड यू आर लिसनिंग. इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है कि हम कम्युनिकेशन कब बोलते हैं और टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे हुआ. मैं अपनी इन्फॉर्मेशन
एक तो हुआ कि मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, क्लास में मुझे बैक टू बैक बच्चे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, एक तो लाइव क्लास में हो गया, ठीक है, वो हुआ हमारा कम्युनिकेशन। दूसरा तरीका क्या हुआ कि मैं आपको अभी यहाँ पे अपना वीडियो पहले बना रही हूँ, पढ़ाने के बाद आपको दे रही हूँ, देन आप उसको सुन रहे हो, और क्वेश्चंस हो सकता है पूछो, हो सकता है नहीं पूछो, ओके। बट टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ये इस तरीके से होता है इस केस में कि मैं एक स्पीकर हूँ, मैंने आपको बोल के सुनाया और आपने उसको गेट किया, आपने उसको सुन के उस चीज़ को सुना है। सो आप कम्युनिकेशन दोनों तरीकों में बोल सकते हो। जब आमने सामने इंसान दो बातें कर रहे हैं, साथ के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशन हुआ। और अगर कम्युनिकेशन में और अगर दूसरी सिचुएशन है कि एक स्पीकर है जो बोल रहा है और लिसनर है सिर्फ सुन रहा है, जैसे कि कॉन्फ्रेंसेज होती है, सेमिनार्स होते हैं, एक बोलने वाला होता है स्पीकर, बाकी सब लिसनर्स होते हैं, तो वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है, ओके। सो दोनों ही सिचुएशन में हम बोलेंगे कि देयर इज अ कम्युनिकेशन, एंड दैट्स व्हाई वी से कम्युनिकेशन इज अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ये you need two parties, okay, more than two parties can be there, but at least two parties we need. Now communication is a two way exchange of information, that is giving and receiving, जैसा कि मैंने अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, गिविंग एंड रिसीविंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो फर्स्ट दैट इज गिविंग एंड रिसीविंग। सो गिविंग में मैं गिवर हो गई हूँ, because here I am speaking as well as I am writing. uh, I have already written the notes before in these slides, so the notes have been written, only I have wrote this notes. So I'm speaking here and I have written the notes, so I am a giver who is speaking and who gave you the notes to someone are examples of giving information। यानी कि यहाँ पे टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है दो लोगों के बीच में, एक होता है गिवर गिविंग एंड दूसरा होता है रिसीवर रिसीविंग, ओके। गिविंग कौन होता है? जो बोल रहा है, ऑब्वियसली जो दे रहा है, क्या क्या देगा? इन्फॉर्मेशन, यानी स्पीकर, तो वो हो गया स्पीकिंग एंड राइटिंग। और दूसरा होता है रिसीविंग या रिसीवर, वो क्या होगा? हु इज़ रीडिंग एंड लिसनिंग, आप इन नोट्स को रीड कर रहे हो और इसको लिसन, आप इस वीडियो को सुन रहे हो, है ना। तो आप हो गए रिसीवर और मैं स्पीक कर रही हूँ, मैं आपको नोट्स लिख के दे रही हूँ, तो मैं हो गई गिवर। तो हम लोगों के बीच में भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है, जिसमें मैं हूँ गिवर हु इज़ स्पीकिंग एंड राइटिंग, एंड यू ऑल आर द रिसीवर्स हु आर रिसीविंग द content, who are receiving the information, who are listening to this video and who are reading these notes, okay. So I hope now you understand the concept of communication, okay। communication जब भी आता है, you don't have to be blank, you don't have to do the रट्टाफिकेशन, आपको बिल्कुल ये रट के नहीं जाना है, आपको सिंपल टर्म्स में समझना है। communication means what? To share the information, obviously we need two persons, so between two or more individuals, or there can be a group, okay। After that, what is the importance of communication? Importance of communication, information, influence, जैसा कि हमने जस्ट अभी पढ़ा है, and express feelings। then elements of communication। अब elements of communication आते ही नो, ये चीज़ तो आपको जो मैंने अभी पढ़ के सुना है समझ में आ गया कि गिवर क्या हुआ, रिसीवर क्या हुआ, मैं कौन हूँ, स्पीक कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं गिवर हूँ, आप सुन रहे हो, दैट मीन्स आप रिसीवर हो, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन इसमें एलिमेंट्स क्या है, ओके। इस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स गेट दिस एग्जाम्पल, ओके। सो हियर वी हैव one person, suppose this person is A and this person is B, okay। this person, you can see this arrow is giving information, okay। this person is giving information to this person। so जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मैं कौन हुई? गिवर। सो दिस पर्सन इज सेंडिंग द इन्फॉर्मेशन ना, सो ये गिवर, और गिवर को हम क्या बोलते हैं? सेंडर भी बोलते हैं। गिव करना या सेंड करना एक ही बात होती है। सो दिस पर्सन इज गिविंग द इन्फॉर्मेशन, सो ही इज अ sender, okay। you can see here the communication process starts with the sender, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये रिसीव तभी तो करेगा जब सेंडर भेजेगा, तो कम्युनिकेशन बेसिकली स्टार्ट कौन करता है? सेंडर। सो फर्स्ट एलिमेंट हुआ इसका सेंडर। देखो एलिमेंट्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है, जैसे कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर अगर मैं पूछती हूँ कि एलिमेंट्स क्या क्या है, ठीक है, एलिमेंट्स को हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो होता है पार्ट्स। अपने स्कूल में मतलब स्कूल के मेन अथॉरिटीज़ कौन है, या मेनली स्कूल
किन लोगों से बना हुआ, उसमें मेन चीज़ क्या है। तो हम बोलेंगे भाई एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, एक टीचिंग स्टाफ है, एक नॉन टीचिंग स्टाफ है, स्टूडेंट्स है। तो ये सारे जो पार्ट्स हुए ना, ये सारी जो चीज़ें हुई, ये सारे क्या हुआ इसके एलिमेंट्स। वैसे जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या क्या चीज़ें आ रही है, वही होता है हमारा एलिमेंट्स। ओके, सो हियर वी नो जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है तो एक बोलने वाला होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीकर, उसी को बोला जाता है सेंडर। ओके, ये इन्फॉर्मेशन भेज रहा है और दूसरी साइड में सुनने वाला कौन है, रिसीवर। तो दो एलिमेंट्स तुमको साफ साफ पता चल गई। फर्स्ट इज द सेंडर हु इज सेंडिंग द इंफॉर्मेशन एंड हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन। सेकेंड एलिमेंट इज रिसीवर हु इज गेटिंग द इंफॉर्मेशन। Okay, now when sender starts communicating, he will send some message, obviously कुछ information भेजेगा, कुछ मैसेज देगा रिसीवर को। सो जो थर्ड चीज़ आती है सेंडर रिसीवर के बाद में, द थर्ड चीज़ इज the channel, sorry, first thing is the communication process starts with the sender. After that a sender sends a, मैं आपको जैसे 1 2, you can see a 1 2 3 देन दिस फोर्थ एंड देन फिफ्थ पार्ट। तो पार्ट वाइज ही समझाती हूँ, आपको थोड़ा इजी रहेगा। सो फर्स्ट इज आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज सेंडर एंड रिसीवर। फर्स्ट इज सेंडर, the communication process starts with the sender, obviously he starts to speak, he will send some message. After that a sender sends a message asking for, गिविंग और आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो सेंडर है ये अपने इसने प्रोसेस स्टार्ट किया और यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस में उसने क्या किया, मैसेज को सेंड किया। ओके, मैसेज सेंड करने के बाद ऑब्वियसली हमारा जो मैसेज है वो किसी न किसी चैनल के थ्रू जाएगा। सपोज आप दोनों आमने, आपके दोनों फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स दोनों आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन का चैनल क्या हुआ, एयर, है ना। एयर के थ्रू आप जो बोल रहे हो वो यहाँ पे जा रहा है और उसके कानों तक उसको सुनाई दे रहा है। आपने थोड़ा बहुत सब कुछ फिजिक्स में पढ़ा होगा। ओके, और दूसरा तरीका क्या होता है, जो भी दूर दूर है तो इसको फ़ोन कॉल कर रहा है और इसके पास इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो उसका चैनल क्या हो गया उस टाइम पे, चैनल मतलब पाथ या वाया जिसके थ्रू वो जा रही है इन्फॉर्मेशन। तो अगर सामने सामने खड़ा है तो उसका चैनल कौन हुआ, एयर, एयर के थ्रू इन्फॉर्मेशन जा रही है। जब दोनों फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो इसका चैनल कौन हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन। अगर दोनों वीडियो कॉल कर रहे हैं तो इन दोनों का चैनल कौन हो गया, सपोज आप लैपटॉप जो भी यूज़ करो, मतलब जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन जा रही है। जस्ट मैंने चैनल को आप समझाने के लिए ये सब बोला है। ओके, हम जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन है उसको भी उस पर भी बात करेंगे, बट बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, चैनल मीन्स जिसके थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंच रही है, वो होता है चैनल। सो देखिए डेफिनेशन, अ चैनल और a channel or path such as phone, face to face used to transfer the message, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो थर्ड, फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हुई, सेकेंड उसने अपने मैसेज को भेजा, थर्ड जिसके भी थ्रू उसने भेजा होगा वो, फिर फोर्थ प्रोसेस हुई द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। अब इस चैनल के थ्रू मैसेज यहाँ आया और रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया फोर्थ प्रोसेस में। फिफ्थ प्रोसेस इज द रिसीवर रिप्लाइज टू द सेंडर। अब फोर्थ प्रोसेस में रिसीवर जो है सेंडर को रिप्लाई कर देगा। तो एलिमेंट्स इसमें क्या क्या हुए, सेंडर, द मैसेज, ओके, रिसीवर, थर्ड एलिमेंट इज रिसीवर, फोर्थ एलिमेंट इज चैनल। तो यहाँ पे एलिमेंट्स हुए, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, सेंडर, रिसीवर, चैनल, द मैसेज which is going from sender to receiver। तो ये सारी आपकी हो गई एलिमेंट्स। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल कुछ समझ में नहीं आया देन यू कैन आस्क। ओके, अभी देखिए एक चीज़ इसमें और मैं समझा देती हूँ इसी के अंदर, कि जब कोई मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जाता है, सपोज आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, है ना। तो फ़ोन पे बात करते टाइम सेंडर ये अपनी वॉइस, मतलब हम जैसे नॉर्मल बोलते हैं हाय, उस तरीके से बोलेगा। क्या ये हाय ही पूरा यहाँ पे प्रोपोगेट होके जाएगा, नो, दैट हाई जो है यहाँ पे, हाई मैसेज जो आपने बोला है वो यहाँ पे सिग्नल्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है
और सिग्नल्स यहाँ तक पहुँचते हैं और वो सिग्नल्स फिर से क्या होते हैं, अपने हाई मैसेज में कन्वर्ट होते हैं, वापस से कन्वर्ट होते हैं एंड देन रिसीवर के पास अपना हाई मैसेज जाता है। तो यहाँ पे जो चैनल के थ्रू जो भेजा जाता है फ़ोन कॉल पे, तो भी सिग्नल्स की फॉर्म में जाता है। इसलिए हम यहाँ पे जब मैसेज को बोलते हैं एनकोड, यानी कि हमारा हाई मैसेज जो हमने हाई भेजा था HI हाई, वो एनकोड हो गया किसमें, सिग्नल्स की फॉर्म में यहाँ तक आया। फिर वो सिग्नल्स फिर से डिकोड हो जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं डिकोड, वापस यानी कन्वर्ट हो जाना, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाना। सो सिग्नल से वापस किस फॉर्म में आ जाएंगे, हाई फॉर्म में, और वो चले जाएंगी रिसीवर के पास। सो ये आपके एलिमेंट्स इसमें बेसिकली 4 है, सेंडर, रिसीवर, चैनल एंड मैसेज। और ये सारी प्रोसेस है कि कम्युनिकेशन होता कैसे, ये पूरी प्रोसेस, ओके, हाउ द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन को हम सिंपल, बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात करें तो आपने एक वर्ड सुना होगा, परसेप्शन। ओके, कि हाँ, मेरे मेरे उस फ्रेंड ने तो बिना सोचे समझी मेरे बारे में ऐसा परसेप्शन बना लिया। ऐसा वर्ड हम बहुत बार सुनते हैं, या यूज़, जिसको पता है वो यूज़ भी करता है, जिसको नहीं पता उसको सुनने में आया होगा लेकिन उसको पता नहीं होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेप्शन। ओके, सो परसेप्शन का बेसिक मीनिंग होता है, सिंपली आप इस लाइन को देखिए, फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग। यानी कि परसेप्शन यानी कि पहले से ही हम सोच लेते हैं कि ये पर्सन ऐसा ही है। ओके, सपोज आपका फ्रेंड है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी उससे फर्स्ट मीटिंग हुई और आपने उससे कुछ हेल्प के लिए पूछा लेकिन उसने मना कर दिया। तो आपका एक परसेप्शन बन गया माइंड में, आपका एक व्यू बन गया, जिसको मतलब हम बोल सकते हो एक आइडिया उसने ले लिया, या फिर उसने फिक्स अपने माइंड में थिंकिंग कर ली कि भाई ही इज़ नॉट गुड, है ना। उसने ऐसा सोच लिया है कि दैट पर्सन इज़ नॉट गुड। दैट मीन्स आपने ऐसा परसेप्शन बना लिया अपने फ्रेंड के लिए कि अच्छा नहीं है, बिकॉज उसने मेरी हेल्प नहीं की। ऑल तो बहुत अच्छा होगा लेकिन आपकी फर्स्ट मीटिंग में ही बोलते हैं ना, इंप्रेशन ख़राब हो गया। ओके, सो दी समटाइम्स अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन। ये चीज़ें भी हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। ओके, सो आपको बेसिकली परसेप्शन का मीनिंग समझ में आना चाहिए यहाँ पे। सो होपफुली आपको आ गया होगा, परसेप्शन मीन्स आइडियाज, व्यूज और फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। अब पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन में फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज लैंग्वेज। सपोज आपकी कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप कोई आपको फ्रेंड है जो फॉरेन से है और उसको जो है इंग्लिश अच्छे से आती है, वो हिंदी को इतना अच्छे से नहीं समझ पाता है, थोड़ा थोड़ा सा उसको ग्रैप कर पा रहा है। और आपने अपनी हिंदी लैंग्वेज में जैसे अपन फ्रेंड से बात करना, चलना, ऐसा कुछ नॉर्मल आपने कुछ उससे स्टेटमेंट बोला। ओके, सो उसके लिए वो लैंग्वेज थोड़ी सी कैजुअल हो गई, उसको थोड़ा सा लगा होगा कि इसका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। सो अपने माइंड में सेट कर लेगा, एक परसेप्शन बना लेगा कि दैट पर्सन इज़ नॉट गुड। ओके, अब फ्यूचर में आप उससे कोई सही से भी बात करोगे तो उसके माइंड में फिक्स है कि ये सही नहीं है, तो हमेशा माइंड में उसके वही रहेगा। तो इससे भी आपका क्या होगा, कम्युनिकेशन ऑब्वियसली अफेक्ट होगा। फ्यूचर में हो सकता है कि आपसे वो कुछ अच्छे से आपको रिस्पॉन्ड नहीं करे, आपसे सही से बात नहीं करे। तो इस परसेप्शन की वजह से आप दोनों का कम्युनिकेशन अफेक्ट होगा। इसीलिए हम यहाँ पे इसको एक फैक्टर में काउंट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन इज लैंग्वेज। लैंग्वेज की वजह से हमारा कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है। सेकेंड इज द विजुअल एंड थर्ड इज द कल्चर। ओके, विजुअल मीन्स सपोज आप लाइक आप सभी ने डमशराज खेला होगा। ओके, सो आप कुछ हैंड मूवमेंट के थ्रू विजुअली किसी फ्रेंड को कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, बट वो उस चीज़ को नहीं समझ पाया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस परसेप्शन की वजह से एक विजुअल एक ड्रॉबैक होने की वजह से कि हम विजुअली उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए और वो क्या कहना चाह रहा है और हमने उसको क्या समझ लिया, और यहाँ से भी हमारे टर्म्स कुछ ख़राब हो सकते हैं। दैट मीन्स ये भी हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगा। थर्ड इज़ कल्चर। कल्चर में बेसिकली क्या होता है कि सभी का कल्चर जो है, हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स अडॉप्ट किए जाते हैं। सभी का डिफरेंट कल्चर होता है ना। आप अपने जैसे कि आप एक एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी को अपना थंब शो किया, तो थंब शो करने का भी दो तरीके होते हैं। फर्स्ट चीज़ ये भी डिपिक्ट करता है थंब शो करने का कि ग्रेट जॉब, यानी यू डिड वेल। और सेकंड ये भी होता है कि भाई ठेंगा दिखा दिया इसने तो खराब,
नो। सो वो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, वो उस चीज़ को क्या समझता है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं उनके कल्चर में उनको लग रहा है कि इसका मीनिंग ग्रेट जॉब है, और दूसरे लोगों को लग रहा है कि हमारे कल्चर में इसका मीनिंग ये होता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, आप इसको लिंक कर सकते हो। ओके। सो कल्चर डिफरेंस की वजह से भी आपके कम्युनिकेशन पे अफेक्ट हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज फीलिंग। ओके, सपोज यू आर नॉट फीलिंग गुड। आपने ऐसा, आपको कोई काम दिया गया है, आपको किसी फ्रेंड से कुछ जाके बात करनी है, कुछ उसको बोलना है, आपको फ़ोन कॉल करना है, बट आपने ऐसा परसेप्शन बना लिया है कि नहीं यार, मैं उससे बात करूँगा मेरा दिमाग ख़राब होगा, मुझे उससे बात नहीं करनी है ना। आपने पहले माइंड में सोच रखा ही है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, क्या है उससे बात करके ना मूड ख़राब होगा, सो विल नॉट कॉल हिम, है ना। सो इसकी वजह से भी क्या होता है, कोई अच्छा कम्युनिकेशन आपसे कोई बात करना चाह रहा हो तो वो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ भी अगेन आपका कम्युनिकेशन अफेक्ट हुआ है। ओके, सो there are a number of factors that affect the communication because of the perception, but here we are discussing the main points that are language, visual, culture and feeling. Okay, next is the effective communication. Okay, effective communication can be achieved by the basic principles of professional communication skills. तो जैसे ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, हमने कम्युनिकेशन का मीनिंग समझा है, अब हम उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू अचीव, we can achieve the effective communication by the basic principles of professional communication skills. Okay, and that what is the meaning of professional communication skills? Okay, obviously this question will come to your mind, what is the meaning of this professional communication skill, ma'am, ना। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स वो होता है विच कंटेन्स 7 C's। अब ये 7 C's क्या होता है, तो 7 C's को एक जस्ट एक एब्रीविएशन के फॉर्म में बच्चों को सही से लर्न हो जाए इसलिए ऐसा छोटा सा टर्म यूज़ किया हुआ है 7 C's का। 7 C's यानी 7 times C। ओके, सो फर्स्ट सी का मीनिंग होता है क्लियर, सेकंड सी का मीनिंग होता है कंसाइज, थर्ड सी का मीनिंग होता है कॉन्क्रीट, फोर्थ का होता है करेक्ट, नेक्स्ट फिफ्थ का होता है कोहरेंट, सिक्स का होता है कंप्लीट एंड सेवेंथ सी का मीनिंग होता है courteous. Okay, let's see these C's meaning in detail. So first C is clear. So clear is be clear about what you want to say. So अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए फर्स्ट सी जो है क्लियर, दैट मीन्स आप यू हैव टू बी क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू से। बातों को घुमा फिरा के नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कहा क्लियरली कहा। ओके, नेक्स्ट इज कंसाइज। use simple words and say only what is needed. Concise, you know the meaning of concise यानी कि छोटा रूप, है ना, छोटा। सिंपल वर्ड्स यूज़ करो और जितना ज़रूरत है उसके लिए स्टेटमेंट के लिए उतना ही करके बात को कंप्लीट करो, ज़्यादा बात को घुमा फिरा के नहीं करना है। नेक्स्ट इज कंक्रीट। ओके, यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जो एग्जैक्ट वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है और जो फ्रेजेस की रिक्वायरमेंट है ओनली वही बोलना। करेक्ट इज यूज करेक्ट स्पेलिंग्स, लैंग्वेज एंड ग्रामर। अच्छी ग्रामर यूज़ करना है, स्पेलिंग यूज़ करनी है, लैंग्वेज यूज़ करना है। नेक्स्ट इज कोहेरेंट, योर वर्ड शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा आपको आईटी रही हूँ और आईटी पढ़ाते पढ़ाते इसमें कुछ, क्योंकि यहाँ पे पूरा इंग्लिश के ऊपर चल रहा है कम्युनिकेशन, तो मैं बिल्कुल इंग्लिश के टॉपिक पे चली जाऊँ, ऐसा नहीं। आई शुड नो that I am teaching IT, so my main focus should be on the IT subjects, not on the English. So जो आप पढ़ा रहे हो आपको पूरा सेंस होना चाहिए, या जो आप समझ रहे हो आप उन्हीं मेन टॉपिक्स को कवर करो, है ना। टॉपिक्स में पढ़ाते पढ़ाते आप बिल्कुल गलत टॉपिक की तरफ ना चले जाओ, कि एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट इज कंप्लीट, योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरी की पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नो 2-3 स्टेटमेंट्स दे दिए, जैसा कि मैंने आपको बोला है यू जस्ट ड्रॉ अ सर्किल। ओके, तो आप पूरी आपकी पूरी क्लास क्या करेगी, सब लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे, फिर मैं बोलूँगी, फिर सपोज मैंने बोला कि बेटा सर्किल के अंदर यू जस्ट ड्रॉ अ ट्राइंगल, आप सब लोगों ने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। आफ्टर दैट आई से एट द कॉर्नर ऑफ दैट ट्राइंगल यू जस्ट मेक अ स्क्वायर बॉक्स एंड राइट योर नेम इन दैट। ओके, जब मैं सभी बच्चों के पेपर पे जाके देखूंगी ना
कि किसने क्या किया है, सभी के आंसर्स डिफरेंट होंगे। किसी ने सर्कल साइड में बना रखा होगा, किसी ने बड़ा सर्कल बनाया होगा, किसी ने छोटा सर्कल, किसी ने ट्रायंगल बिल्कुल सर्कल के कॉर्नर्स को टच करके बनाया होगा, किसी ने फर्स्ट कॉर्नर के ट्रायंगल पे नाम लिख दिया, किसने सेकंड कॉर्नर, किसने थर्ड, सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर होगा। क्यों हुआ ऐसा? मैंने इन्फॉर्मेशन सबको एक जैसी दी, बट सभी ने फिर भी आंसर्स डिफरेंट क्यों ड्रॉ किए? बिकॉज मैंने जो इन्फॉर्मेशन, जो मैसेज आपको पास किया है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट नहीं थी। अगर मैं आपको बोलती 5 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ करो एंड बिल्कुल सेंटर में, तो एग्जैक्टली सबका सेम होता। दिन में बोलती ट्रायंगल ड्रॉ करो और वो तीनों ही सर्कल की कॉर्नर्स को टच करने चाहिए, तो एग्जैक्ट बीच में ट्रायंगल बनता जो कॉर्नर्स को टच करता। फिर मैं बोलती लेफ्ट बॉटम वाले पे एक स्क्वायर बनाइए 4x4 का, ओके, तो एग्जैक्ट सभी का सेम बनता और उसमें अपना नाम लिखिए। तो अब बनाना सबका सेम, बिकॉज अभी मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। So this is basically the meaning of complete message. Okay. Next is courteous. Be respectful, friendly, and honest. So this is very important part of communication, courteous, because you should have the courtesy. सब कुछ points आप follow कर रहे हो. We don't have the courtesy. We don't know how to speak. You are using very rude language that will that will definitely affect your communication. So these are the 7 C's that affect your communication. So for today we are done. And thank you so much ध्यान से सुनने के लिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है then please text me, you can ask me, and I'm not giving you any worksheet today. You just have to write all these notes in your notebook. So the notes already I have created the notes in this presentation, so according to that you just have to write in your notebook वन बाय वन। जैसा ऑर्डर यहाँ पे आप देख रहे हैं उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। सिलेबस के बाद यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर इंपॉर्टेंस, देन एलिमेंट्स। जो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं वही डायग्राम्स आपको बनाने हैं। और वैसे ही मैंने बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही अच्छे से आपको ये समझाने की कोशिश करी है। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।